سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلیٹن کی۔ ناظرین آپ کو آگاہ کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد برصغیر کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بابا پیر شاہ غازی المعروف دومڑی والے سرکار اور رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش کے مزارات کھڑی شریف جا کر حاضری دینے کے وقت بیل کا صدقہ دیا۔ ان بزرگان دین کے چلہ گاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ بعد ازاں انہوں نے تحریک آزادی کشمیر خطہ کی تعمیر اور ترقی، خوشحالی پاکستان کی سلامتی، دفاع وطن، شہدائے پاکستان کشمیر، بزرگان دین اور اولیاء کرام کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کروائی۔ اسلام آباد میرا بھی ہے اعتبار، رشتے بھی چمکے چم 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 لیمن میکس لانگ بار چم 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 پہنچے تو ہوائی جہاز ہمیں یعنی 30,000 میٹر کی بلندی پہ ہم نے بات کروائی تاکہ وقت بچے، یعنی کوئٹہ لینڈ کرنے سے پہلے جو وقت ہے وہ بھی بچ جائے، تاکہ بیکاز ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ لائف ایک حسین بیلنس ہے دیکھے اندیکھے کے بیچ میں، جو ملے ڈولنس کے آل نیو ریفریجریٹرز کی سائڈ illuminated لائٹ سے، جو ریفریجریٹرز کو رکھے برائٹ اور بڑھائے ویزیبلٹی، کیونکہ ڈولنس ریلائبل۔ യഥാർത്ഥ ഫ്രൂട്ട്സും 100% നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവറുകളും ചേർത്ത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈതൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം, ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. Laza Ice Creams since 1970. Conference motion, and so there was a movement going on. Imran Khan, the former Prime Minister, essentially then started talking about some Quranic verses, it's called Amr bil Maroof and Nahi anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices, somehow that we were the standard bearers of vice and he was somehow the standard bearer of virtue. That, by the way, for reference, was also a line that Taliban used in the previous incarnation. They had a ministry of that name. But we جب ڈیٹول اینٹی سیپٹک لکوڈ گھر کی ہر بکٹ کا حصہ ہو تو آپ اور آپ کا گھر رہے 99.9% محفوظ اور سب کو بچائے 100 قسم کی بیماریوں والے جراثیم سے۔ ڈیٹول کے روزانہ استعمال سے میرے اپنے محفوظ رہیں۔ الیکشنوں سے پہلے بھی جھوٹے وعدے، پھر الیکشنوں کے بعد بھی جھوٹے وعدے۔ الیکشن سے پہلے میں 90 دن میں یہ کر دوں گا، میں 30 دنوں میں یہ کر دوں گا، میں اپنا دودھ اور شہد کی نہریں لے آؤں گا، ریاست مدینہ بناؤں گا۔ دیکھیں ریاست مدینہ کا نام لے لے کے جو اس نے اپنا جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور زیادتی کی ہے اپنے ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ، ہمارے معاشرے کے ساتھ، ہماری معاشرت کے ساتھ، ہماری معیشت کے ساتھ، تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کو تو عبرت کا نمونہ بننا چاہیے۔ اس نے پاکستان کے ساتھ وہ حشر کیا ہے جو ہم کبھی خواب و خیال میں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، اور آئندہ دیکھیں کیا عزائم لے کے بیٹھا ہوا ہے، کسی بات کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ قانون کو مانتا ہے، نہ آئین کو مانتا ہے، نہ پارلیمنٹ کو مانتا ہے، نہ ابھی ایک تمہارے خلاف ایک بالکل لیگل وہ آیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن، تم مانو، سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا اپنا، بتائیں۔ اور پنجاب میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، دیکھو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، صدر ہے، تم ملک کے صدر ہو، تم کس طرح سے اب اوتھ نہیں دو گے، تم کس طرح سے اپنے جو فرائض منصبی ہیں ان کو ان کی بجاوری نہیں کرو گے، کیسے اور کیسے قوم تسلیم کر لے گی؟
मेरा मैं तो नहीं तस्लीम करता, मेरा दिल बिल्कुल तस्लीम नहीं करता, मेरा ज़मीर इसको तस्लीम नहीं करता। और मैं, आप जानते हैं कि मैं इन चीज़ों के खिलाफ लड़ता रहा हूँ और मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला जब तक कि एक तुम्हारे खिलाफ एक बिल्कुल लीगल वो आया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन, तुम मानो सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा अपना, बताएं। और पंजाब में देखो क्या हो रहा है, देखो पंजाब में क्या हो रहा है, सदर है, फिर तुम मुल्क के सदर हो, तुम किस तरह से अब ओथ नहीं दोगे, तुम किस तरह से अपने जो फराइज मनसबी हैं उनको उनकी बजावरी नहीं करोगे, कैसे और कैसे कौम तस्लीम कर लेगी। मैं तो नहीं तस्लीम करता, मेरा दिल बिल्कुल तस्लीम नहीं करता, मेरा ज़मीर इसको तस्लीम नहीं करता। और मैं, आप जानते हैं कि मैं इन चीज़ों के खिलाफ लड़ता रहा हूँ और मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला जब तक कि हमारी जमहूरियत की और हमारे इस जो है वो नजरिए की आखिरी फतह नहीं होगी। सदर को हटाया जा सकता है? क्या मीटिंग होगी आज फिर आपकी? सदर को हटाया जा सकता है? मैं अभी देखें, मैं इस तरह की जो ना वो सवालात के जवाबों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये काम उनके ठीक नहीं है। वो उनको वो अपना मुल्क का सोचना चाहिए, वो मुल्क का सदर है। वो सर नया सदर कौन बनेगा? मौलाना फजल रहमान सदर बन सकते हैं? और अभी देखें, मैंने तो अभी आपको कहा कि पंजाब में क्या इस वक्त हाल बना हुआ है, कोई है वहाँ पे गवर्नमेंट, कोई है वहाँ पे वजीर आला इस वक्त, बताए मुझे। और मरकज में भी क्या होता रहा है, उनको मालूम है, फॉरेन फंडिंग केस का मालूम है कि शायद क्या नतीजा आएगा, उनके खिलाफ आएगा, आना भी चाहिए। अगर गलत है, अगर गलत कारियां की हुई तो नतीजा उनके खिलाफ आना चाहिए। पहले से ही कौमी असम्बली से अपने बंदों को इस्तीफे दिलवा दिए, ताकि क्योंकि उसमें अगर खिलाफ आता है तो पूरी पार्टी बैन हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो पहले से इस्तीफा दिलवा दिया ताकि ये लगे कि जी हमने तो इस्तीफा दे दिया हुआ, वरना उसके बाद देना पड़ना था इस्तीफा। मुझे बताए ये शख्स क्या है, ये शख्स क्या है, ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, ये कहाँ पड़ा भला है, कहाँ ग्रूम हुआ है, कहाँ इसकी परवरिश हुई है, कौन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का ये पैगाम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए है। मैं तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूँ कि खुदारा अपनी सियासत को पार्लियामेंट के हद तक रखे, ना कि अफवाज पाकिस्तान को उसमें घसीटने की कोशिश करे, उनको बदनाम करने की कोशिश करे और उनके ख़िलाफ़ साजिशें करे। हम पाकिस्तानी कौम किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो अफवाज पाकिस्तान की तज़लील करे। अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम के माथे का झूमर है। शुहदाए अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए फ़ख्र है। पाकिस्तान की ज़मीन का एक एक टुकड़ा इस बात की गवाही देगा कि अफवाज पाकिस्तान के शुहदा ने मुल्क व कौम के लिए जो कुर्बानियाँ दी है उसको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। जैसा कि कल आपने देखा कि बलूचिस्तान में एक हमारे जवान मेजर शाहिद बशीर जो शहीद हुए हैं अपने मुल्क की खातिर, आज हमारे 3 जवान वज़ीरिस्तान में शहीद हुए हैं अपनी मुल्क की सलामती की खातिर। तो मुझे बताए कि कौन से सियासतदान ने या उनकी किसी औलाद ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हो। तो हम तमाम सियासी जमातों को ये पैगाम देते हैं कि अगर आपने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बंद ना की तो पाकिस्तानी कौम, मजलिस कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में आपके ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे करेगी और फिर आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आज के जलसे के हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगी। आप लोगों ने देख लिया कि आज पाकिस्तान की अवाम, समंदर उमड़ रहा था लाहौर में, मीनारे पाकिस्तान में। ये अवाम नहीं है, ये इनकलाब है, ये जुनून है, ये मोहब्बत है अपने लीडर के साथ, जो कि जिसने साबित कर दिया है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर।
हम इन चोरों, लुटेरों, जरदारी माफिया, पटवारियों को हरगिज़ इनको हम नहीं तस्लीम करेंगे। और इंशाअल्लाह 3 महीने में इलेक्शंस कंडक्ट करवा के इमरान खान साहब को 3/3 अक्सरियत से दोबारा वज़ीर आज़म बनवाएंगे, क्योंकि अल्लाह अल हक है। अल्लाह ताला की सपोर्ट, आवाम की मोहब्बत, आवाम की दुआएं इमरान खान जैसे सच्चे लीडर के साथ हैं। आज हैदराबाद लतीफ़ाबाद प्याला होटल पे लाइव खिताब स्क्रीनिंग के ज़रिए इमरान खान साहब का आवाम तक दिखाया गया। यहाँ पे जो मजमा था बच्चियों का, मर्दों का, ख़वातीन का, एक मोहब्बत है अपने लीडर के लिए जो साबित कर रही है कि इमरान खान के नज़रिए और मंशूर के पीछे पूरी आवाम, पूरा पाकिस्तान, पूरा इनकलाब, पूरा जुनून खड़ा है। और इंशाअल्लाह अगली बारी फिर न्याज़ी इंशाअल्लाह। मैं दिल की गहराइयों से नाव न्यूज़ HD जो चैनल हैदराबाद के अंदर आवाम के हकूक़ की नुमाइंदगी कर रहा है, आवाम की आवाज़ बना हुआ है, मैं उनकी दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ, जो कि हर प्लेटफॉर्म पे आवाम की नुमाइंदगी के लिए मौजूद रहता है और हमेशा हमारे माओ बहनों के हकूक़ की बात की है। तो अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए। प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई, मुदाखलत की गई, साजिश की गई और हमारी जमहूरियत उसके ऊपर, हमारी सॉवरेंटी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात बाहर से हुई। तो मैंने जब ये कहा तो कितने लोगों ने, कई सहाफ़ी थे, हमारे मुखालिफ पॉलिटिशियन, वो सब ने कहा कि नहीं जी ये फेक है, ये ठीक नहीं है, ये झूठ है। तो आज आप सब यहाँ आए हैं और मैं सबके सामने फिर कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर से जो गुफ्तगू की गई, अमेरिका के वो जो डोनाल्ड लू था, उनका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो हकीकत थी। उसके अंदर जो जुबान इस्तेमाल की गई उसने जो लफ्ज आया अनडिप्लोमेटिक, मैं उससे आगे बात करूंगा, तकब्बुर था उसमें। ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ने जिस तकब्बर की जुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि जनाब अगर आप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाएंगे नहीं, नो कॉन्फिडेंस की वोट के जरिए, और अभी ये याद रखें कि नो कॉन्फिडेंस की वोट जो टेबल नहीं हुई थी नो कॉन्फिडेंस असेंबली में, उससे पहले ये मीटिंग हुई है और उसने धमकी दी कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के लिए आइसोलेशन होगी, इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, मुल्क के लिए मुश्किलात आएंगी। और अगर फिर ये दूसरी चीज कि अगर आप इमरान खान को हटा देते हैं तो माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हाँ जो नया आएगा फिर हम उसकी कारकर्दगी देखेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम चलेंगे नहीं। उसको पता था किसने आना है। यहां से साजिश का पता चलता है कि इमरान खान को हटाओ और फिर पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। और फिर जो जिस तरह की से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। हालिया नामालूम अफराद की साबक सदर बार मंडी बाउद्दीन की गाड़ी पर शदीद फायरिंग की जद में आकर साबक सदर बार महमूद परवेज रांझा एडवोकेट ड्राइवर समेत
जहांबाग। फायरिंग से महमूद परवेज रांझा का बेटा दानियार रांझा एडवोकेट शदीद जख्मी। पुलिस फालिया फायरिंग का वाकया मोजाहम्बड़ के करीब पेश आया। सैनिटरी और टाइल्स की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम मिर्जा सैनिटरी स्टोर, जहां मिले सैनिटरी की वसी और दीदा से वैरायटी जो चले साल हर साल। टाइल्स के खूबसूरत रंग जो बनाए आपके घर को और भी खूबसूरत, जिस पर है सबका एतमाद। गुजरात का सबसे बड़ा सैनिटरी एंड टाइल स्टोर मिर्जा सैनिटरी स्टोर। एक बार टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग्स लगवाएं, फिर उम्र भर के लिए भूल जाएं। बरसों से आपके भरोसे और एतमाद का नाम मिर्जा सैनिटरी स्टोर, रेलवे रोड, गुजरात। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। इस्लामाबाद एसी सेक्रेटरी अनिल सईद ने कमेटी के हमरा सस्ता रमजान बाजार का दौरा किया ताकि शहरियों को चीनी, आटा, दालें, फल, सब्जियां वगैरह सब्सिडी मुतल्ला शुदा नरखों पर ज़रूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम सादिक, आम लोग पार्टी पाकिस्तान से। मैं पाकिस्तानी इस वक्त उनसे आप सबसे मुखातिब हूँ। मैं आप सबको जगाना चाहता हूँ, आपकी नस्लों को बचाना चाहता हूँ। आप जागना नहीं चाहते, आप हकीकत को जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं। ये नुकसान किसका है? पाकिस्तान का, पाकिस्तान की नस्लों का। हमने पाकिस्तान को बचाना है, खुदा के लिए पाकिस्तान के सिस्टम को बदलना है। अच्छा, मुझे ये 1 मिनट के लिए बताइएगा, मुझे आपको गुस्सा लगेगा तो लगेगा, यकीनी बात है, मैंने तो अपने हक बात कहनी है। आप बताएं खान साहब, आपको पता है आपने गंद खरीदा, आज से 4 साल पहले आपने गंद खरीदा, इधर उधर से इकट्ठा किया, उस गंद ने इकट्ठा गंद करके आप मुंह पे मारा, ये ले, समझ लग गई? ये था गंद। असल हीरोज आपको नहीं मिल सके, असल हीरोज को आपको छोड़ दिया। नंबर 1, मैं खुद एक नेशनल पार्टी का चेयरमैन हूं, आम लोग पार्टी पाकिस्तान का। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, अवाम को क्यों नजर नहीं आ रहा? इन लोगों को 22-25 करोड़ जो अवाम, इसको क्यों नजर नहीं आ रहा? अब 1 मिनट के लिए सोच लीजिएगा, आपका एक वज़ीर-ए-आज़म आ गया नया, शहबाज शरीफ आ गया। अच्छा, कुछ सब्र करता, कुछ देर ठहर जाता, कुछ दिन, कुछ महीने ठहर जाता, मगर नहीं, उन्होंने कहा हम सबसे पहले नैब खत्म करेंगे। भाई को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे वापस आ रहे हैं। इसका मतलब है वो भाई को बचाने आया, केस खत्म करने आया, भतीजी को बचाने आया, बेटे को बचाने आया, खुद अपना को बचाने आया, जरदारी को बचाने आया, बिलावल को बचाने आया, ABC जितने भी, मतलब फजल रहमान जैसे जितने भी पाकिस्तान में करप्ट थे, उसमें ब्यूरोक्रेट थे, उसमें जो भी थे, सबको बचाने के लिए उन्होंने एक बंदा के चुन लिया। ये आप जल्दी देखेंगे, आपस में हाथ पाई हो जाएंगे। ये ना, ये जो कुछ सामान इकट्ठा किया, ये भी गंद इकट्ठा किया ना, जिस तरह खान साहब, ये भी सारा एक ही सारा गंद इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान का। और अवाम भी जाग रही, पाकिस्तान के नौजवान नहीं जाग रहे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का वो फिक्र नहीं है। आप बैठ के तमाशा देख रहे हैं, मेरे टीवी लगा के, कभी आगे कभी पीछे, ये क्या रहा? हम इस गंद से दूर ही अच्छे भाई, आपको आना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा अपने आगे बच्चों को बचाने के लिए। इनको जूते मार के बाहर निकालना पड़ेगा भाई। ऐसे सिस्टम ठीक नहीं होते, कुर्बानियां देना पड़ती हैं। मुझे भी पता है मैं वो कुर्बानी दे रहा हूँ, देनी पड़ेगी। मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इनको जूते मार के गंद जिससे साफ करते हैं, साफ करके अपनी असम्बली साफ करें। ये ठीक है, फरिश्ते ऊपर से नहीं आने, आप में से फरिश्ते बैठे हैं, आगे लेके आए। आपको समझ लग गई? ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे सदर बना दो, कोई कहता है मुझे वज़ीर खारजा, वज़ीर दाखिला। इस पाकिस्तान का ये बेड़ा गर्क कर देगा, जो बचा हुआ था वो भी जाएगा।
आप पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तानियों उठो, पाकिस्तान को। खाला अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो, वाह क्या बात है। बोनस की। खाला अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो, वाह क्या बात है। बोनस की।